देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 228 और आज हमारे बीच में है आदरणीय केसी कौशिक साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। और आपने इससे पूर्व भी जो है वसीयत की बाबत जानकारी और विश्वास कंफ्यूजन का पार्ट 1 लिया था। आज आप पार्ट 2 लेंगे और ये बहुत हर्ष का विषय है। आज हमारे बीच में ऑल इंडिया टैक्स प्रैक्टिशनर से मिस्टर राव साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, और हमारे सत्यनारायण साहब हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जो सब्जेक्ट को जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे राव साहब करेंगे और बाद में वोट ऑफ थैंक्स और सत्यनारायण साहब से लेंगे। अब मैं आदरणीय राव साहब से निवेदन करता हूँ कि वो सब्जेक्ट को शुरू करें। आदरणीय राव साहब। Thank you, Sharma ji. Thank you very much for giving me this opportunity, because I am very junior to Mr. Keshi Kaushik sir. First of all, I thank the organizers to giving me this opportunity. And our Keshi Kaushik sir is an advocate over there in Supreme Court of India, and he is dealing multi-fabric subjects over there in the Supreme Court. I am very happy today evening to introduce the subject of will. Last time we have already heard Mr. Keshi Kaushik sir about the will first part, and this is the continuation second part of the will. Practically last time we have already discussed about the will, what is will, and what type of wills we would like to prepare in our culture of Indian system of registering authority, and as well as that will be accepted by the honorable courts as well as the departments for the purpose of getting the relief for the families who are in the subsequent generation. The will is a very helpful to the family members and to the all the other members of the connected connected and linked with the persons who are there in the subject matter of the that particular properties, shares, whatever it may be. That will is very important, vital role is carrying from the so many years, from the days of British also. The will in the olden days is going to be in a paper, only paper. It will be eligible to file before any authority. Subsequently, after some time, in the government statute, it will be recognized under the Notary Act. Subsequently, it is registered with the registering authorities, and if not registered, the oral commitment is also a will, is to be before the some family members who are the dedicated services not involved in the particular assets and other the family matters. They are also one of the witnesses over there in the oral commitment will also there types of 4 to 5 types, and the rest of other wills also there. The will is very much useful for the purpose of getting their benefits or their shares of the members of the family or who are the dependents of the that particular family. This will is to be created by the generally by the person who are hails the properties to share the people to the dependents, to the sons, daughters, son-in-laws, daughter-in-laws, wife, and other brothers and sisters like that, and a mother and father who are alive like that. The will is having multi members of the people in the family to induct in that particular will. That is one thing. Another thing, my speaker, Mr. Keshi Kaushik, is enlightening the second part of the will, which has been already recorded in, this is the 228, the webinar of this August gathering, and I don't want to take much more time. The will is having a powerful forever in the Indian system of procedures, Indian law system and Indian jurisprudence. The will is very much powerful. That's why the will is having a lot of subject and a vast subject. It will not be 1 or 2 webinars
we don't want to cover all those things. That, however, we will justify the main key points, whatever it may be the key points in the will, that should be discussed and designed by the lawyers like our Kaushik sir, advocate from Supreme Court of India, and he is argued so many cases relating to these bills. That's why he is the appropriate and proper person to speak about the will of the second phase. I welcome Sri K.C. Kaushik sir to speak about the second part of will, and I am very happy to join with all the people over there at Lucknow, and we will see wherever our AFTP people and other people also to join with at Lucknow. In physically, we will meet over there. I thank the organizers for giving me this opportunity. I request the organizers to go ahead further. Thank you very much. So kind of you. धन्यवाद अहमद राव साहब, हम आपका जैसे आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला। और अब हम आदरणीय केसी कौशिक साहब से निवेदन करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 2 बार सेक्रेटरी रह चुके हैं, और आपके बेटे राहुल कौशिक भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय केसी कौशिक साहब से। थैंक यू। let me give one thing कि my president, national president Mr. Rao has given so many good words for me. I'm thankful to him first. The point is, let me say one thing from my heart कि अरविंद शर्मा साहब जो ये मिशन चला रहे हैं, तो 28वां वेबिनार ये कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे करते हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं। जो आज का टॉपिक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि टॉपिक इन्होंने बहुत सुंदर रखा है, वसीयत की बाबत जानकारी, विश्वास एंड कंफ्यूजन। बेसिकली द इशू इज कि पीपल हैव सो मेनी मिसकंसेप्शन एज फार विल इज कंसर्न। जैसा मुझे याद है, लास्ट जो हम लोग ने विल पर चर्चा की थी, वसीयत पर चर्चा की थी, उससे हमारे कुछ साथियों ने ये बात कही थी कि साहब विल लोग करते हुए इसलिए डरते हैं क्या वो भगवान को प्यारे होने वाले हैं। ऐसा नहीं है, ये टोटल मिथ है। विल का हमारा जो वसीयत करने का पर्पस होता है, वो ये होता है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वो प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी उनको इनहेरिटेड हुई है उनके फादर से या जिससे भी होने वाली है, उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी का जो है सही इस्तेमाल हो सके। वो प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए, परिवार के लिए है या जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने दी है, वो वसीयत के द्वारा उसको दे सकें। उसमें ऐसा ना हो कि लोग आपस में झगड़े कर करके उस प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर दें। ऐसे ऐसे केस सुनने में आए हैं जिसमें झगड़े कर करके पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने वकीलों फीस में दे दी और फिर भी उसका फैसला नहीं हो पाया। तो विल का जो बेसिक पर्पस है, वो पर्पस ये है कि विदाउट वेरी हसल्स जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी प्रॉपर इस्तेमाल होनी चाहिए। सारी जिंदगी कमाई अपनी लगाई होती है, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, शेयर परचेज करता है, एफडी करता है, और राइट और रॉन्ग, यदि 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे आपस में झगड़े शुरू कर देते हैं तो उसका अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम सबको जरूर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि वसीयत की कोई एज नहीं है। वसीयत यंग एज को भी करना चाहिए, ओल्ड एज को भी करना चाहिए, सीनियर सिटीजन को भी करना चाहिए। इसका सबसे बड़ी जो ग्लोरी एग्जाम्पल है कि ड्यूरिंग कोरोना we have seen so many mishappening even for the young generation. तो ये कहना बड़ा गलत है कि साहब विल एक सिटीजन से सीनियर सिटीजन को करनी चाहिए और सीनियर लोगों को करनी चाहिए, यंग लोगों को नहीं करनी चाहिए। एक मेरी पर्सनल नॉलेज में है, एक बच्चा 28 साल का था और 28 साल के बच्चे कोरोना में उसकी डेथ हो गई और उस बच्चे के फादर वर्चुअली ही वाज विपिंग। जो आरटीओ डिपार्टमेंट है वो उसका ट्रांसफर नहीं करते थे। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आदमी को झंझोड़ के रख देती हैं कि आखिर वसीयत क्यों नहीं करना चाहिए।
यंग एज में भी उतना ही विल का इम्पोर्टेंट है जितना जितना ओल्ड एज में इम्पोर्टेंट. लास्ट टाइम वी हैड ट्राई टू डिस्कस इन जनरल. Today we will try to speak in general as well as specific. बेसिक जो इशू है, विल कौन कर सकता है? जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 11 है. सेक्शन 11 के महत्व, इफ ए पर्सन इज ए मेजर, इफ अ पर्सन इज ए साउंड माइंड और ही और शी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, ये 3 कैटेगरी है उसमें. पहला मेजर होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, तीसरा किसी भी कानून के मातहत वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए. ऐसा व्यक्ति वो विल कर सकता है, वसीयत कर सकता है. अब ये एक सवाल पैदा होता है कि जो व्यक्ति वसीयत करने जा रहा है, द पर्सन हु इज इंटरेस्ट टू मेक हिज विल, व्हाट शुड बी हिज एज. इसमें जो मेजॉरिटी एक्ट है 1875, उसमें मेजॉरिटी की एज सेक्शन 3 में प्रोवाइड की हुई है. इफ ए पर्सन इज ए मेजर, तो पर्सन कैन एग्जीक्यूट हिज विल. लेकिन विल के में जो एक बेसिक कंडीशन है, विल आप अपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को ही कर सकते हैं. यू कैन नॉट मेक द विल ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. जो आपकी वट एवर द प्रॉपर्टी यू हैव एक्वायर्ड फ्रॉम योर ओन, only of that property you can need by way of will, but not the property which has been inherited from his forefather, his source father. जहां तक विल का सवाल है, will who is capable, the person who is capable to understand what is wrong, what is right. The person should be mature enough to understand what he is going to write, what he is going to alienate by way of will. So the basic concept है, the person should be mature, first thing. The second thing, person should be capable to understand the right or wrong. Otherwise, there could be a doubt as far the execution of the will is concerned. Even the married woman can, under section 59 of the Indian Succession Act, married woman can also execute the will of the property which she can dispose of during her lifetime, if she is capable or she is legally authorized to dispose of the property in her lifetime. Then she can execute the will also. There is a very few questions arise all the time. A person who is a deaf, dumb, blind, whether they are capable to execute the will. As far as the deaf, dumb, blinds are concerned, if they are in a position to identify by their act and conduct कि what is their wish, तो डम भी विल कर सकता है, आपका डीप भी विल कर सकता है, और आपका जो ब्लाइंड आदमी है वो भी विल कर सकता है. बेसिक जो है, पर्सन शुड बी साउंड माइंड. जो साउंड माइंड का कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसलिए बेस्ट ये होता है कि जिस टाइम हम विल करें तो हम या तो किसी डॉक्टर से, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उससे एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले लें कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हम जो व्यक्ति वसीयत करने जा रहा है, विल करने जा रहा है, द पर्सन इज ए साउंड माइंड. यदि आप साउंड माइंड नहीं है आपका, तो आपकी विल को चैलेंज करने में, जिस व्यक्ति के फेवर में आप विल करने जा रहे हैं, उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं.
ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ का जहां तक सवाल है वो ये है कि जो प्रोपाउंडर है उसको प्रूव करना होता है कि ये विल एग्जीक्यूट हुई है, स्पेशली इन द केस ऑफ प्रोबेट। जब आप प्रोबेट की बात करते हैं, मैं पहले भी मैंने कहा था, आज मैं फिर वही सी बात को दोहराता हूं, विल आप कर सकते हैं, आप मेजर होने चाहिए, आप साउंड माइंड होना चाहिए, आप कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, और आपको किसी विल जो है आपका किसी फ्रॉड से नहीं कराई गई हो, आप पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया गया हो, आपको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया हो। तो जहां तक विल का सवाल है, विल आप कोरे कागज पे भी बना सकते हैं, आप उसको टाइप भी करा सकते हैं, आप अपने हाथ से लिख के भी उसको कर सकते हैं। आप किसी मान लीजिए टाइपिस्ट से टाइप कराते हैं या वकील से अपनी विल बनवाते हैं, तो उस केस में जो टाइप करता है वो अच्छा होता है कि आप उसके साइन कराएं कि साहब हमने जो जो ये कहा था वो सारी बातें इस विल में लिखी, इस डॉक्यूमेंट में लिखी हैं जो विल है। यदि आप किसी वकील से बनवाते हैं और आपको मान लीजिए वकील साहब ने अंग्रेजी में विल बनाई है, तो उनको ये उसमें एक स्टेट उसमें ये लिख के देना चाहिए कि इस व्यक्ति की विल हमने इनके कहने से बनाई है और हमने जो भी बातें इसमें अंग्रेजी में लिखी हैं वो हमने इनको उनकी भाषा में समझा दी है। मान लीजिए वो आदमी हिंदी समझता है तो हिंदी में समझा दी है, इफ ए पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश तो हमने इंग्लिश में समझा दी है, हमने ये पे पर्सन तमिल जानता है तो हमने तमिल में समझा दी है। द इंटेंशन इज कि whenever the person executing his will, he or she should be in a position to know the correct facts, actually what he is signing, where he is signing, or where he is marking, where is putting his thumb impression। तो ये है कि सपोज कीजिए the person is not literate, person is illiterate, तो वो अपना थंब इम्प्रेशन लगा देंगे, उनका थंब इम्प्रेशन आइडेंटिफाई होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति थंब इम्प्रेशन में लगाने से को मार्क लगाने की स्थिति वो मार्क लगा सकता है। अब जो सबसे बात है, जैसे मैंने बताया, विल आप जो विल करते हैं, विल आप कोरे कागज पे अपने हाथ से लिख सकते हैं, आप उसको टाइप करा सकते हैं, आप किसी और से टाइप करा सकते हैं, खुद टाइप कर सकते हैं, किसी वकील से करा सकते हैं, इसमें कहीं बाउंडेशन नहीं है। और जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो ये भ्रांति है कि साहब विल को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता आया हूं, कानून ये कहता है कि विल को आपको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप पूरे कागज पर लिख सकते हैं, आपको स्टैम्प पेपर पर भी नहीं लिखना है, आपको प्लेन कागज कॉपी में से फाड़ के आप लिख सकते हैं, आप टाइप करा सकते हैं। आपकी बेसिकली जो आपकी मानसिकता है, वॉट एवर इज योर माइंड एज ए साउंड पर्सन, यू कैन पुट इन राइटिंग, इन योर ओन राइटिंग, टाइपिंग और dictating to some other person who can take the dictation, thereafter वो आपको पढ़ के सुना दें, so that you can understand the things कि जो आपने कहा है वही उसमें लिखा गया या नहीं लिखा गया। ऐसा ना हो कि आप कह कुछ और रहे हैं और वो व्यक्ति जो लिखने वाला है उसमें कुछ और लिख दे। इसलिए ये कहा गया कि जो रीजनल लैंग्वेज है, जो जो टेस्टिटर है, जो भाषा वो समझता है, will should always be executed in that, preferably in that language only. Suppose पर्सन तमिल है, बंगाली है, पंजाबी है और उसकी विल आप हिंदी में लिख रहे हैं, तो जो लिखने वाला व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको जो रीजनल लैंग्वेज है उस रीजनल लैंग्वेज में उसको समझा दे। अब जैसे आप वकील साहब के पास जाएं और वकील साहब
ये आपने बताया था मैं ऐसे विल करना चाहता हूँ, और दिस विल में हम इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। वकील साहब ने मान लीजिए अंग्रेजी में लिखी, तो उनकी ड्यूटी बनती है वो जो भी लैंग्वेज है, जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जो टेस्टेड है उसकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ही आपको उनको बताना चाहिए। और बताने के बाद आपने लिखा है कि हमने इनको इनकी जो भाषा है, जो समझते हैं, उसमें उनको पढ़ के सुना दिया है, और सुनाने के बाद ही इन्होंने किया है। भोजपुरी तो भोजपुरी में सुना दें, आप कन्नड़ है तो कन्नड़ में सुना दें। तो ये हमको सबको विल बनाते टाइम ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी विल अच्छा तो ये होता है कि विल का एक साउंड माइंड सर्टिफिकेट ले जाए फ्रॉम द क्वालिफाइड डॉक्टर, और यदि संभव हो तो 2 अटेस्टिंग विटनेस अदर कुड बी योर नोन, और a person in his presence or her presence, you have put your mark or your signature or you have put your thumb impression. Till and unless will, then 2 witnesses ये आइडेंटिफाई करें कि इन्होंने विल मेरे सामने सॉरी इन्होंने विल मेरे सामने साइन करी। तो पर्पस क्या है कि लॉ ये कहता है कि विल के केस में आपको हमेशा 2 अटेस्टिंग विटनेस के सामने विल, तो वो अपने में डाउट हो जाता है ये कि विल जो है आपको रजिस्टर्ड करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा वही निवेदन करता हूं, विल ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कानून यह मान्यता देता है आप साउंड को लीजिएगा, बंद हो गई साउंड, आपकी बंद हो गई। और जब आपकी साउंड बंद हो गई है, रजिस्टर कराना चाहे तो अपोज हिज और हर विल, whether there should be 2 independent witnesses or the registrar concerned could be one of the attesting witness. लॉ ये मान्यता देता है कि आप एक विटनेस उसमें रजिस्टरिंग अथॉरिटी भी हो सकती है यदि आप चाहें। उस समय ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों अटेस्टिंग विटनेस बाहर से ही लेके जाए। अच्छा ये होता है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि बंदा साउंड माइंड नहीं था। ये जो व्यक्ति है जिसने विल कराए, ये छोटे बेटे के पास रहता था या बड़े बेटे के पास रहता था, उन्होंने इस पे इन्होंने ओल्ड एज के कारण अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ये विल करा ली है। तो उन सब से बचने के लिए आपको जब भी आप विल करें अपना ये कार्य जरूर कराएं कि आप अपने साउंड माइंड का डॉक्टर से सर्टिफिकेट जरूर लें। और यदि इफ एट ऑल दैट इज पॉसिबल ले लें और उसके बाद कर लें। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन कुड बी कि मेडिकल ऑफिसर और डॉक्टर whosoever is a qualified person, he should be a one of the attesting witness to your will. यहां तक कोर्ट तो यहां तक मान्यता देता है कि मान लीजिए आपका डोमेस्टिक सर्वेंट है, आपका ड्राइवर है, आपका कोई घरेलू नौकर है, और आपके पर्टिकुलर समय में आपको ध्यान आया कि साहब मेरे का तो कुछ भरोसा नहीं है, मेरे को तो विल करनी है, तो कोर्ट यहां तक मान्यता देती है कि जो आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं
even they could be one of the attesting witness to your will. अब ये अराइज होता है कि रजिस्ट्रेशन का, जैसे मैंने बताया आपको कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो धारा 18 है, 18C में स्पेसिफिक उन्होंने ये कहा है कि विल का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। बार बार मैं ये कहता हूं कि उसमें इसको आपको बचने के लिए सिर्फ एक काम आप कर सकते हैं कि यदि आपको ये प्रूव कराना हो कि पर्टिकुलर डेट में आपके बच्चों को दिक्कत नहीं आए, जिसके फेवर में आप विल करने जा रहे हैं उसको कल कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करे, तो आप 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर परचेज कर लीजिए। अब आप 10 रुपए का आपने नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर परचेज कर लिया। मान लीजिए आज है आपका 12 दिसंबर 2021, आज का आपका स्टैंप पेपर है। तो आज का जब आपका स्टैंप पेपर है तो उससे दो बातें तो क्लियर हो जाएंगी। एक तो यह है कि आज से पहले आपने विल एग्जीक्यूट नहीं की है। दूसरा, आज की डेट का आपका मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट है, तो आपको ये प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़े। आपके जो जिसके विल है या प्रोपाउंडर हैं या बेनिफिशियरीज हैं, उनको उसमें रियायत मिल जाएगी, उनको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी साहब वास्तव में ये विल किस दिन एग्जीक्यूट हुई थी। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, ऐसा भी देखने में आता है कि साहब इन्होंने कोरे कागज पर साइन करा के रख लिए थे और बाद में इन्होंने अपने हिसाब से विल बना लिए है। इनके हमारे जो फादर थे या माता जी थी या जो भी थे, जिसने भी विल क्या ना बेनिफिशियरी के फेवर में की है, तो साहब ये उनको तो पता ही नहीं उन्होंने विल क्या करा ली है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम डेट आपके प्रूव हो जाएगी यदि आपने नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर कराया है, वो दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपने मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट ले रखा है तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने एक विटनेस मेडिकल ऑफिसर को बना रखा है तो आपको आप साउंड माइंड थे या नहीं थे, आप ये समझ पा रहे थे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे को किसके फेवर में करनी है किसके फेवर में नहीं कर रही है, तो उससे भी आपको आपके जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक बात आई है विल आप एक फैमिली पेंशन की तो नहीं कर सकते। जो परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है उसमें तो रेस्ट्रिक्शन है, वो आप विल नहीं कर सकते। लेकिन कानून ये मान्यता देता है अदर देन योर मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी you can execute a will in respect of your provident fund and gratuity also। ये जो हमारी भ्रांति है कि साहब मेरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है मैं उसी का करूं, मैं अपने पीएफ का नहीं करूं, अपनी ग्रेचुइटी का नहीं करूं, या मेरे अपनी एफडीज का नहीं करूं, या मैं जो मेरे शेयर सर्टिफिकेट उनका नहीं करूं, तो ये धारणा भी गलत है। इस धारणा से भी हमको बाहर आना चाहिए। बेसिकली आपकी जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उनको जब आप विल करने जा रहे हैं तो आपको सब प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर देना चाहिए। आपको इवन लॉकर को भी आप कर सकते हैं कि मेरे लॉकर में ये सामान रखा है, ये मैं तो अपने 4 बच्चों में से इस बच्चे को दे रहा हूं, या मैं ट्रस्ट को दे रहा हूं, या फलानी जगह को दे रहा हूं। विल के ये जरूरी नहीं है कि विल आप जो है ना अपने बच्चों के फेवर में करें, विल आप आउटसाइडर के भी कर सकते हैं। कई बार ऐसी बातें आती हैं कि एक बच्चे को एडॉप्ट किया गया, एडॉप्शन प्रूव हो गया। अब ये बात है साहब कि अब ये कैसे पता लगा विल इस एडॉप्टेड पर्सन के लिए हुई थी। उसमें कोर्ट ने एग्जामिन किया कि जब ये बात आ गई है कि पर्सन एडॉप्ट हुआ है, लीगल जो अडॉप्शन एक्ट है उसके मातहत वो एडॉप्ट हुआ है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और जिस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया है वो बच्चे के फेवर में उस व्यक्ति ने विल करी है। तो ये प्रिजम्पशन है कि अडॉप्शन जब प्रूव हो गया तो विल ऑटोमेटिक प्रूव होगी कि उसके फेवर में विल की गई है, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाती हैं। अब ये प्रिजम्पशन होती है कि प्रूफ ऑफ विल क्या होगा।
इसमें पहली बात तो ये है कि इंटेंशन, will is nothing but your intention to how to alienate your property, whether the property is a movable property or immovable property. But the intention or effect of the will is how you want to alienate your property. उसके लिए एक तो आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए विल से कि आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। आप साउंड माइंड होने चाहिए, आपकी फ्री विल होनी चाहिए। अब ये साउंड माइंड और फ्री विल का ये इतना ग्रे एरिया है, जब तक हम लोग किसी डॉक्टर से अपने माइंड का कि हम साउंड माइंड हैं या नहीं हैं, हमको ये प्रूव कराना हमेशा इंटरेस्ट में होता है कि ये बात बाद में बच्चों को दिक्कत नहीं करे, या जिनके फेवर में आपने विल करी है उनको दिक्कत नहीं करे कि आप साउंड माइंड नहीं थे। अब मान लीजिए आप चैरिटी में देना चाहते हैं तो और घर वाले नहीं चाहते, तो आपको ये बात उससे क्लियर हो जाएगी। क्या क्या होना चाहिए आपके विल में? राइटिंग में होना चाहिए, आपके उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि आपके हस्ताक्षर नहीं है तो आपका अंगूठा लगा होना चाहिए। यदि आपका अंगूठा भी लगाने की स्थिति में नहीं है तो आपको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट पे जिसको आप विल कह रहे हैं। उस विल के साथ आपको जो इंश्योर करना है वो ये करना है कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने चाहिए। इंडिपेंडेंट विटनेसेस से मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल बाहर का आप पकड़ के लाएंगे। विटनेसेस का मतलब ये है कि वो भी साउंड माइंड हो, वो भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, माइनर ना हो। और मैंने जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कानून तो यहां तक मान्यता देती है कि यदि आपका सर्वेंट भी है, आपका ड्राइवर भी है और कोई भी व्यक्ति है, वो आपका अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है। एक होता क्या है, अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो our mind is always feeling to that extent, क्या सही है क्या गलत है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस स्थिति को स्टेबल करने के लिए ये जरूरी होता है कि जब हम विल करते हैं तो विल करने से पहले हमको अपने व्यवहार का, अपने माइंड का एक बार मेडिकल ऑफिसर से, डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, जो हम सबके जो बेनिफिशियरीज हैं या प्रोपाउंडर हैं उनको आगे फेस नहीं करना पड़े। एक होता है कि अटेस्टिंग विटनेसेस का नॉर्मली क्या होता है कि यदि मैटर प्रोबेट के लिए जाता है, पहली बात तो ये है कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें यूपी भी है कि वहां विल को प्रोबेट कराना जरूरी नहीं है। यदि प्रोबेट कराना जरूरी नहीं है तो आपको विल की प्रोबेट कराने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, मान लीजिए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है या कोई और डेवलपमेंट अथॉरिटी है या नगर पालिका है, वो आपको ये कहती है कि आप इसको अटेस्ट करा के इसको प्रोबेट करा के लाइए। लीगली वो इस बात के लिए नहीं कह सकते, लेकिन होता क्या है कि उसके 2 रीजंस होते हैं। एक रीजन तो ये होता है, टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग टू दैट एक्सटेंट, कि जो अधिकारी हैं ओपन सीक्रेट है कि वो अपने सुविधा शुल्क का भाव बढ़ाने के लिए वो ये कहेंगे इसको अटेस्ट करा के लाइए। आपको उस केस में कहना क्या चाहिए, जो आप बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि इसको 2 पार्ट्स में होना है। एक तो हमारा पार्ट ये है कि हम विल कर रहे हैं, दूसरा पार्ट है कि मान लीजिए हमारे से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके फेवर में विल है, वो बेनिफिशियरी है, वो प्रोपाउंडर है कि हाउ द प्रॉपर्टीज विल बी डिवाइडेड टू द डिफरेंट पर्सन
in terms of the will which was executed by the testator. उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा सुझाव ये है, जो बेनिफिशियरी या प्रोपाउंडर है, कि उस प्रॉपर्टी को किस तरह से वो क्या नाम है विल के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कराएं, तो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अथॉरिटीज से ये बात बताएं कि साहब हमारी स्टेट में विल को प्रोवेट कराना जरूरी नहीं है। जब विल को प्रोवेट कराना जरूरी है तो हम उसके लिए क्यों जाए? मैक्सिमम वो ये कर सकते हैं कि वो आपसे ये कहें, जो आपके अटेस्टिंग विटनेसेस हैं उनसे आप एफिडेविट ले लीजिए, तो आप उसका उनका एफिडेविट दिला सकते हैं। हाँ, अभी इसको एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो हमको सबको ध्यान रखने वाली बात है, जब हम विल करते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं वो हमारी एज से कम एज के हों। मान लीजिए व्यक्ति है 60 साल का, 70 साल का, समझा, और वो आदमी अपने को अपनी उम्र के व्यक्ति से ही कोई अटेस्टिंग विटनेसेस बनाता है। उसमें रिस्क क्यों रहता है? वो ये रहता है कि मान लीजिए व्यक्ति 70-72 साल के थे और जिनसे उन्होंने विटनेस कराया वो भी उसी एज के आसपास थे, तो पता लगा कि दोनों की डेथ ही आसपास में हो गई, तो जो बेनिफिशियरी है या प्रोपाइंडर है उस केस में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता। इसीलिए ये होना चाहिए और ये संभव है कि हम लोग ये कोशिश करें कि अपनी एज से कम एज के लोगों को हम अटेस्टिंग विटनेस बनाएं। सेम एज के बनाना अवॉइड करना चाहिए। हालांकि जो कोरोना है, उस कोरोना ने तो हम सबको हिला दिया है। वो यहां तक कहता है कि किस उम्र में किसको क्या हो जाए नेवर, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी की बात है। यदि प्रॉपर्टी की बात है, जो एक सीनियर सिटीजन है जिसकी 60 साल या 70 साल या 80 साल उम्र है उसकी में, और जो नॉर्मल यंग एज है, यंग जिसकी एज है, दोनों में काफी फर्क होता है। और उस जब फर्क होता है तो प्रोबेबिलिटी मान के चले जाते कि मान लीजिए जो टेस्टेटर है उसकी उम्र 70 साल थी या 75 साल है और वो उसी उम्र का नहीं बना के वो 40-50 साल का बनाते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी कि यदि कोई डिस्प्यूट होता है, प्रोबेट की बात आती है या और कोई झगड़ा होता है, तो वो कोर्ट में जाके उसको ये बता सकते हैं, ऐसा मेरे सामने साइन हुआ था, मैंने देखा था, मैंने ये बनाया था, उससे ये फायदा हो जाता है। और ऐसा कानून तो यहां तक कहता है, अटेस्टिंग विटनेस की बात आ रही थी कि इसमें जो एविडेंस एक्ट है हमारा, उसमें एक सेक्शन है 90, देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन। वो ये कहता है कि इफ द डॉक्यूमेंट्स रिलेट्स टू more than 30 years old, documents includes will also। तो यदि क्या नाम है विल 30 साल पुरानी है और उसको प्रोबेट के टाइम पे ये अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी नहीं होता है। ये प्रिजम्पशन है लॉ की कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और उसके हिसाब से ठीक है। उसमें धारा जो आपकी धारा 90 है आपकी एविडेंस एक्ट की, उसमें एक एग्जेम्पशन दिया गया है। दूसरी बात यह है कि यदि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है और उसका एग्जीक्यूशन डिनाई नहीं है, कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो उस केस में भी अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी वजह से, ये है कि साहब एक विल थी और विल ए के पोजीशन में थी और कोर्ट ये कहती है कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर, इस डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करिए, और वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। यदि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया जाता तो कानून ये मान्यता देता है कि उस केस में
जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एडमिसिबल होगी। उसमें ये इंसिस्ट नहीं किया जा सकता कि हमको ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट वहां पे प्रोड्यूस करना है। यदि उसकी सेकंड कॉपी है और किसी के पोजीशन में है और वो फोटो कॉपी भी हो तो दैट अमाउंट्स सेकेंडरी एविडेंस। जब आपका प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो हम सेकेंडरी एविडेंस से काम चलाते हैं। थोड़ा सा मैंने कानून इसलिए टच किया है कि पिछली बार हमने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात की थी। मेरा उद्देश्य पहले भी ये था और मेरा आज भी उद्देश्य ये है कि समाज को कुरीतियों से बचाना है। और हमको, हालांकि मैं लीगल प्रोफेशन में हूं, मैं खुद वकील हूं, हमारे अरविंद शर्मा साहब भी वकील हैं और काफी लोग जो इस वेबिनार से जुड़े हुए सब वकील होंगे। हमारे वकील भाई ये कह सकते हैं कि भाई ये तो आप एडवाइस ऐसी दे रहे हो जिसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरा एक मानना ये है समाज को यदि हमको ठीक करना है तो हमको कुछ चीजें अवेयरनेस लानी चाहिए। अब अवेयरनेस लानी चाहिए, जैसे अभी मेरी अरविंद जी से एक हफ्ते पहले बात हो रही थी तो वो कह रहे थे टॉपिक बताओ। मैंने उनको ये निवेदन किया था, अरविंद जी यदि मेरी विजडम आप माने तो आपको, उस दिन जो हम विल की बात कर रहे थे, वसीयत की बात कर रहे थे, काफी बुजुर्ग लोग ऐसे थे जो जिनकी तसल्ली नहीं हुई थी, जिनके सवालों के हम जवाब नहीं दे पाए थे, जिनकी जिज्ञासा थी उन जिज्ञासा को हम जवाब नहीं दे पाए थे। तो मैंने उनसे निवेदन किया था, उन्होंने मेरे निवेदन एक्सेप्ट कर लिया था। और मेरा मानना यह है कि यदि हम इस पोजीशन पे हैं, जो हमारे भाई इस वेबिनार में शामिल हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन शामिल हैं या हमारे यंगर सिस्टर ब्रदर शामिल हैं, उनकी जितनी क्वेरी है मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ भी उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी जो क्वेरीज, उनका जवाब दूं। और यदि किसी वजह से हम यहाँ पूरा नहीं दे पाते हैं तो अरविंद जी के पास मेरा मोबाइल नंबर भी है, मेरी ईमेल आईडी भी है। जो भी लोग ये चाहें कि we should try to help them how to execute the will, what could be effect of the will, whether the will should be in X manner or Y manner, भी हम सबके लिए तैयार हैं। हम लोगों ने एक मिशन बनाया हुआ है, क्योंकि जो 2 साल कोरोना रहा है इससे हम सब हिल चुके हैं। मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके नियर डियर में कहीं कोई किसी तरह की कैजुअलिटी ना हुई। तो इस कोरोना ने हमको सबको ये झंझोड़ के रख दिया है कि हमको विल करनी चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि क्या नाम है 20 साल का जो 21 साल के जो मेजर लोग हैं या शादी की हुई है, इमीडिएट बाद है, वो भी विल कर लें। आपको एक अनफॉर्चुनेट केस बताता हूं कि अभी एक हमारे जानने वाले हैं, उनके बच्चे की शादी 5 महीने पहले हुई थी शादी, और 5 महीने बाद डेंगू से उस बच्चे की डेथ हो गई। उस लड़की का सोचिए जो उससे मैरिज होके आई थी, उस लड़के की मार्क्स के दिल से सोचिए जिनका बेटा चला गया। और ऐसे केस में लड़की ये एक्सपेक्ट करती थी कि अब तो इसकी प्रॉपर्टी में मेरा राइट आ गया। माँ ये सोचती थी कि ये लड़की तो 5 महीने हमारे यहाँ रही है, मेरा लड़का ही चला गया दुनिया से। तो ऐसे केस में आप ये बताइए यदि विल होती तो कितना आसान होता है, नहीं होता। हमको ये सोचना चाहिए, हमको इसको मनन करने की आवश्यकता है कि बार बार जो हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि विल की कोई एज नहीं है। और मैंने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और मैं गॉड फेयरिंग आदमी हूं। जिन लोगों के दिमाग में भी ये गलतफहमी है कि हम विल कर देंगे तो हमारा अंत समय आ जाएगा, ये मिथ है। इसको लोगों को नहीं सोचना चाहिए। हमको निडर होना चाहिए। जब तक हमारे सांस है तब तक आस है। और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं
उनको बिना झगड़े फसाद के, बिना कोर्ट कचहरी जाए, वो अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लें। आपको अभी भी बहुत सारे केस ऐसे बताने की स्थिति में हूं जहां इन झगड़े फिसाद के चक्कर में वो प्रॉपर्टी खंडर हो गई। ना ए को एक के पास मिली, ना बी को मिली, ना सी को मिली। वो मुकदमेबाजी में उन्होंने वो तो खराब कराई, उसके अलावा उन्होंने और अपना पैसा खराब करा। और two persons I know, Mr. M.S. Rao, President, National President, and Mr. Satran, Secretary General. They are from South, but they understand the Hindi well. और हिंदी में मैंने ज्यादातर बोलने का इसलिए लिया कि इस लोग हैं, लेमन लैंग्वेज की भाषा है, और क्या नाम है इसको यूट्यूब पे क्या नाम अरविंद जी डालेंगे और लोग कहेंगे, तो बेसिकली हमको कॉमनर आदमी को बताना है, हमको उनको बताना है कि जो अच्छे वकील अच्छे वकील एंगेज नहीं कर सकते, हम एक लेवल के बाद नहीं कर सकते, जो बेचारे नीडी हैं, हमको उनको समझाना है, भैया तुम भी वसीयत करो, तुम भी अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, तुम भी अपने बच्चों का इंटरेस्ट वॉच करो, और यदि किसी भी कारण से राइट और रॉन्ग बच्चों को नहीं देना चाहते, किसी धार्मिक संस्थान को देना चाहते हैं, तो उसका आपको विल करना चाहिए। यदि आप विल नहीं करते हैं तो आप अपने आने वाली नस्ल के लिए, आप अपने आने वाले बच्चों के लिए एक झगड़ा फिसाद छोड़ के जाने वाले हैं। वो समाज के हित में मेरे हिसाब से नहीं है। और एक बात मैं और आपको क्लियर करना चाहता हूं, विल हम उसी प्रॉपर्टी की कर सकते हैं या उसी मूवेबल चीज की मूवेबल प्रॉपर्टी कर सकते हैं जो हमारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। जो हमको दादा लाई प्रॉपर्टी है उसका हमको विल करने का अधिकार नहीं है। वो जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें जो शेड्यूल दिए हैं उसके हिसाब से होगा। जो मेरी अपनी कमाई है, मैं सिर्फ उस कमाई से जो परचेज है प्रॉपर्टी मेरी, वो मूवेबल हो, मैंने शेयर परचेज किए हो, मैंने आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की हो, मैंने एफडी कराई हो, नेम एनीथिंग except family pension. The exemption is for family pension and the property which I have inherited from which I have inherited from my forefathers. तो नटशेल में ये है कि विल हमको सबको करनी चाहिए। Thank you, Arvind ji, for giving me this great opportunity. So, summing up our learned Kaushik ji's lecture is nothing but adventure. Let me take the adventure. Let me do the honors. Or Kaushik ji has said a person should be of sound mind, right? To certify whether he is of sound mind or not, he was giving us advice of taking certificate to doctor certificate to avoid litigation at a later date. And he also gave us the idea that that the will should be witnessed by two persons. Can be anybody, even domestic servant can also be a witness for that. And registration of the will is not compulsory. And he was giving us other good advice, saying the witness should be younger age persons, so that the longevity and all these things he was explaining. And he was also telling us that white in will can be given on white paper, but judicial stamp on the will can be on the judicial stamp
paper is as an advisable thing, because it has got a date of execution at least to avoid future complications. Of course, he was also telling us that there is no age limit at all. Even people also should also go for a will. He has also quoted the examples of all COVID deaths and all. So, and one more thing, it is will is selling it should be the property what is planning to write in the will should be a self-acquired one. Even movable, immovable, etc. All these things can be there, and including PF and FDs. And he has also given us one more example of asked by our delegates today, senior delegate. What would be the consequence if I add some more FDs after writing the will? So he has given us very good example. He has given a very good reply for that. But he also offered himself to give help to our members, particularly for our fraternity members as well as society, for clarifying their doubts. He has also offered his services for asking the members to send a mail or through phone so that he can give replies to their queries. So it's a great thing that what we had program today. It's a very educative one for all, and mostly more particularly the seniors who participated have solved the questions, and they got the answers, proper answers from our letter speaker Kaushik ji. It was my dream that to be with the part of you seniors like you. Today my dream is fulfilled. Thank you very much for giving this great opportunity to be with you this beautiful Sunday evening. Thank you so much. Thank you so much. धन्यवाद आदरणीय सत्यनारायण साहब सर, और हम आदरणीय केसी कौशिक साहब को धन्यवाद देते हैं क्योंकि इन्होंने अपना समय निकालकर अपना आज वसीयत की बाबत जानकारी, विश्वास और कंफ्यूजन का पार्ट 2 लिया और आने वाले वक्त में पार्ट 3 लेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं MS राव साहब को जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाला और हमको समय दिया सत्यनारायण साहब, और आगे भी हम लोगों को समय देते रहेंगे ताकि ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिलेंगे लखनऊ। थैंक यू वेरी मच कौशिक साहब, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे लखनऊ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार।